صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلاة والسلام. عزیزان ملت، محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے یہی کافی ہے، آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس بات کو سنے اسے بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دے، نقل کر دے، بیان کر دے. آج کل جہاں کہیں بھی اب دیکھیے بہت سی برائیوں کا سامنا ہے، وہاں ہمارے ماحول میں ایک بہت بری عادت یہ ہے کہ جہاں کہیں کچھ باتیں سنتے ہیں ہم اس کے تہ تک نہیں جاتے، یہ بات جھوٹ ہے یا سچ، تحقیق کیے بغیر آنن فانن اس بات کو نقل کر دیتے ہیں. پھر وہ تیسرے تک نقل کرتے ہیں، وہ اور کسی کو نقل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہزاروں جگہ تک پہنچ جاتی ہے وہ بات. آخر کار یہی ہوتا ہے کہ معافی مانگنا پڑتا ہے. تو بھلا وہ کام ہی کیا ہے جو آخر میں معافی مانگنا پڑے؟ اس لیے حدیث سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہر اس بات کو ہمیں نقل کرنا چاہیے جو تحقیقی ہو، جو حق ہو، جو سچ ہو، اس کے بعد اب نقل کریں. اب ماحول کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں 1 سے 3 آدمی اکٹھا ہو جاتے ہیں، چاہے یہ مردوں میں ہو اور عورتیں میں ہو. اگر کسی سے متعلق کوئی بات مل جاتی ہے تو اس کو اس بات کو نقل کرنے میں چسکا لگ جاتا ہے، اور وہ اسی دھن میں رہتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچائے. خدا نہ خواستہ اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو ایک کے پاس غلط بات پہنچانے کی جو گناہ ہے وہ ہزاروں تک پہنچ جاتے ہیں. شاید ہماری نیکی ہی اتنے نہیں ہے. اور میں نے جو کہا یہ مرض بہت عام، یہ مرض عام ہو چکی ہے. ہر جاہل تو جاہل، عالموں میں، علماء میں، حفاظوں میں، قراؤں میں، بڑے بڑے مجالسوں میں ایسی باتوں کو تحقیق کے بغیر بیان کیا جاتا ہے. اور ایسی بیماری جس کے اندر عوام تو عوام، خواص اور اخص الخواص بھی داخل ہو جائے، ایسی چیزوں سے گریز کرنا، پرہیز کرنا اور ایسی چیزوں سے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث سنائی ابھی، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس بات کو وہ سنے اسے بغیر تحقیق کے دوسرے تک نقل کر دیں، بیان کر دیں. یعنی کوئی شخص اگرچہ جان بوجھ کر جھوٹ نہ بول رہا ہو، لیکن اس کی یہ عادت، یعنی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا، یہ جو عادت ہے یہ اتنی سنگین عادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ جھوٹ بولنے کا بھی عادی بن جائے. وہ جھوٹ بولے گا، اس کو جھوٹ بولنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو عادت ہے
वो सुनी सुनाई बात को पहुंचाने की है। और ये बात भी हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती है, बल्कि एहतिमालात होते हैं। अगर ज़न्ने गालिब भी हो भी जाए तो भी तहकीक तो चाहिए। लेकिन आज का ज़न्ने गालिब क्या है? अक्सर और बेशतर ऐसी बातें हमारे माहौल मुआशरे में और हमारे नौजवानों में और हर किस्म के इंसानों में ये बातें फिरती रहती है, जो अक्सर तहकीक के मोहताज है, लेकिन उसको बगैर तहकीक के बयान किया जाता है। और हमारे अंदर इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है कि किसी के मुतालिक अगर वो बुरी बात है तो उसके अंदर हमारे और इंटरेस्ट और मजा लग जाता है, और हम उसको चाहते हैं कि उस बात को छेड़ा जाए, खूब छेड़ा जाए। और दूसरे अगर मालूम भी नहीं है उसे कि ये बात कहां तक है, उसको हम इतने इशारे करते हैं तो उस बात को बयान करने के लिए वो भी झूठ का सहारा लेता है और कैसी भी बनी बनाई कुछ और बातें लगा देते हैं। फिर इन सारे बातों के मजमूए को हम एक जगह जमा करते हैं और ऐसे अंदाज में उसको बयान करते हैं कि वो बिल्कुल हकीकत है और सच है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो शख्स गैर तहकीकी और गैर सच्ची बात नकल करने का आदी हो जाता है, वो जानबूझकर झूठ बोलने से गुरेज नहीं करेगा और वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। बहरहाल हदीस का मकसद ये है कि हर उस बात को नकल करने और दूसरे तक पहुंचाने से मना किया गया है कि इस तरह का काम ना करें, इसलिए कि हर सुनी सुनाई बात का सच होना जरूरी नहीं है। मोहतरम सामीन, झूठ बोलने का जो गुनाह है और वो कितना संगीन है, अब हजरात बखूबी इससे वाकिफ हैं कि हदीस में आते हैं कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू की वजह से फरिश्ते दूर चला जाता है, फिर वो वापस आते हैं। तो अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अगर हमारी झूठ की आदत हो जाए तो अब बोलिए कि फरिश्ते हमारे पास कब रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी नेकियां कौन लिखेंगे? तो ये अगरचे यकीनन झूठ नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी आदत रखने वाले ये भी एक झूठे से कम नहीं है। यानी उसके झूठा होने के लिए काफी है, उसका झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है। तो गोया कि हमारे लिए एक कसौटी है, एक मेयार है जिससे हम वजन और तोल सकते हैं कि हर वो इंसान जो बगैर तहकीक के हर बात, बगैर रेफरेंस के, बगैर प्रूफ के और बगैर हवाले के जो बयान करते हैं, बगैर तहकीक की जो बयान करते हैं हमारे सामने अक्सर, तो हम इस हदीस को सामने रखते हुए ये कह सकते हैं कि ये आदमी भी झूठा है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान कर। इसलिए जिस तरह झूठ से बचना जरूरी है, इसी तरह सुनी सुनाई बातों को नकल करने से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। मोहतरम सामीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर सहाबा किराम के आखिर तक देखिए कि सहाबा किराम के अंदर भी अगर छोटी सी बात अगर तहकीक के मोहताज है तो उसको तहकीक कर लिया जाता, और बगैर तहकीक अगर कोई बात कही गई तो सहाबा किराम के जमाने उस पर सख्त गिरफ्त हुई। उसके लिए शायद हमने ये देखने को हमें मिला, तफसीर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुतालिक जो आयत है उनकी जो सफाई बयान की गई है जिसके अंदर आपकी सिद्दीकियत पर, तो उसके अंदर जिन लोगों ने इस बात को इधर उधर घुमाया फैलाया और तहकीक नहीं किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछे, अम्मा जान से नहीं पूछे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से सही नहीं पूछे, अब उन बातों को आगे तक उन लोगों ने पहुंचाए, तो
तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, अतम्बी की, तो तुम्हारी हिम्मत जुर्रत हुई कैसे ऐसी बात करने की, जबकि ये सारी बातें बिला तहकीक है। तुमने पूरी तरह पूछ क्यों नहीं ली, तुमने छानबीन क्यों नहीं की, तुमने टटोला क्यों नहीं, जबकि दूसरे अशिया, दूसरी चीजें, दूसरे असबाब सामने आए कि उसके बारे में लोग मुतलाशी होते हैं, उसको जुस्तजू करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसकी दलील देखते हैं, हवाला देखते हैं। ये इतनी बड़ी बात है और कईयों तक पहुंच गई, ये नौबत आई क्यों, डांट पड़ी है सहाबा किराम पर, उसे माफी मांग लेना चाहिए। जब एक वाकया सहाबा किराम की जिंदगी में आता है और उसके बारे में इतनी डांट पड़ती है, और हमारी जिंदगी में एक एक दिन में ऐसी कई वाकयात हो जाते हैं, उम्मत के अंदर बिगाड़ का अलावा क्या सबब हो सकता है जो बिगाड़ को पैदा करे। जिनके जिंदगियों में एक आध मर्तबा ऐसा वाकया नमूदार हुआ तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से डांट पड़ी है, इन कोताहियों पर डांट पड़ी है। और हमारी जिंदगी में न जाने कितने वाकयात ऐसे हैं जो हम अंधाधुंध बोले चले जाते हैं। मोहतरम सामीन, दुख और तकलीफ, अफसोस इस बात पर है कि हमारी जिंदगी में ऐसे अनगिनत लोगों के बारे में हम सुनी सुनाई बात इतनी ज्यादा नकल करते हैं, इतनी ज्यादा नकल करते हैं कि उनसे हमें माफी मांगने का भी वक्त नहीं मिलता है। और ऐसे आलम में कोई तो नकल करने वाला दुनिया से चला जाता है, या जिनसे मुताल्लिक बात करते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, और ऐसे लोगों से माफी मांगने का भी वक्त नहीं होता है और उसका इनके ऊपर हक बने रहते हैं। ऐसी सूरत में दोनों की जुदाई हो जाती है। अगर हशर के मैदान में भाइयों, अगर हशर के मैदान में इतने सारे लोग जिनके बारे में हमने सुनी सुनाई बात नकल की है और तकलीफ पहुंचाई है और ऐसे हमने गुनाह कमाया है, ये सारे हजरात अगर कयामत के दिन, हशर के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हिसाब तलब करे तो हम क्या हिसाब देंगे। हमारा जो जाती काम है उसको हम नहीं निभा सके, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम नहीं निभा सकते। जाए कि जो हजरात जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है उनके मुतालिक हमने नकल करते करते गुनाह का ढेर कमाया है, और वो तो एक किस्म के हुकूकुल इबाद है। भले हम कितना नमाज पढ़े, भले हम कितने ही रोजे रखे, हज करे, ज़कात दे और इस्लाम के सारे बड़े बड़े अरकान को समेटे हुए हैं, लेकिन इन हुकूकुल इबाद के मुतालिक अगर हम सफाई ना करें, तस्फिया ना हो जाए, उनसे माफी ना मांग ले और ऐसे हरकत करके अगर दुनिया में चले जाए, हशर के दिन हम कितने बड़े अरकान को संभालने वाले हैं, इबादत करने वाले क्यों ना हो, अगर ये हजरात सामने आ जाए और ये कहे अल्लाह मेरे मुतालिक फुला ने इतनी बातें कही हैं और बगैर तहकीक कही हैं, मुझे दुनिया में बहुत तकलीफें हुई, मुझे रुसवाई हुई, मुझे जिल्लत उठानी पड़ी, ऐ अल्लाह मैं इसे माफ नहीं करूंगा, तो अब बताइए आपको माफी कहां से मिलेगी। क्योंकि ये तरीका भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो हुकूकुल्लाह है अल्लाह चाहे तो अपने बंदों को माफ करेंगे, लेकिन अगर ये हुकूकुल इबाद है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा तब तक माफ होने वाले नहीं। और आपको ये और हमको ये मालूम है कि क़यामत के दिन अगर किसी के हुकूक अदा करना है तो वहां कोई दनानीर काम नहीं आएंगे, कोई दराहिम काम नहीं आएंगे, कोई रुपया पैसा काम नहीं आएंगे, कोई सोने चांदी नहीं, बल्कि उस वक्त बदला और लेन देन जो होगा सिर्फ नेकी और गुनाह की। अगर आपके पास कोई कुछ पाते हैं तो पहले आपके नेकी तलब करेंगे, अगर नेकी नहीं है तो उसके गुनाह का बोझ आपको उठाना पड़ेगा। इसी तरह आप अगर किसी के मुतालिक किसी का हक है, आपका हक किसी पर है, तो उनसे या तो आप उनके सवाब ले सकते हैं या आपके जो गुनाह है ये बोझ उन पर डाल सकते हैं। तो हशर के मैदान में लेन देन रुपया पैसा दराहिम दनानिर से नहीं होंगे, बल्कि नेकी और गुनाह से होंगे। तो हम जिंदगी भर न जाने कितने लोगों के बारे में सुनी सुनाई बात नकल करते 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 बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे,
اور آخر تک ایک دن ختم ہو جائیں گے اور ہزاروں لوگوں کی یہ قرضے لے کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے. بولیے ہم حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اتنے حضرات کے سامنے ہم کیسے اپنے قرضے چکائیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حدیثوں پر ہم عمل کریں اور ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے اور بیان کرنے سے ہم گریز کریں. اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو یہ یقین جانیے کہ ہماری تباہی، ہلاکت اور بربادی بہت قریب ہے، اور ایسے وقت میں ہے جس وقت ہمیں کوئی کام آنے والا نہیں. ایسے وقت میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نہ اولاد، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ چچا، نہ ماموں، نہ دوست و احباب، کوئی کسی کا نہیں. پورے نفسا نفسی کے عالم میں ہے. تو اس دن آپ کو کوئی بے فکر کرنے والے نہیں ہے، کوئی راحت پہنچانے والے نہیں ہے. راحت آپ کا عمل ہے، راحت پہنچانے والا آپ کا عمل ہے. تو یہی وہ عمل کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جانا چاہیے. جو رسوائی، جو ذلت اٹھانی پڑے گی، اس چیز کو ہمیں کتنے سال پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب کام نہیں کرنا ہے. لہذا ہم خود بھی اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے سے ہم گریز کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہمارے لیے بہت بہت کافی ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحقیقی بات، سچ بات اور حق بات کہنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله